Alright guys, we'll start with redemption of preference shares. This is something for this new generation slightly difficult तो नहीं कहूँगा, but कुछ entries है जो हमने पहले नहीं पढ़ी हुई, indirectly पढ़ी थी, but directली नहीं पढ़ी थी. Redemption का मतलब तो सभी को पता है बच्चों, cancellation. Now, when you issue the shares, we say that creates a share capital. Liability. Equity था तो equity share capital, preference होगा तो preference share capital. But when you want to cancel this debt, you have to buy it back. बस word buy back किसमें use करते हो? Equity में. Preference shares में जब buy back करते हो, उसे buy back ना क्या हम क्या कहते हैं? Redemption. ऐसे ही debentures का chapter भी करेंगे, उसमें भी जब आप buy back करोगे उसे buy back नहीं कहते. We call it as redemption. So redemption of preference shares लिखते हैं बच्चों, following journal entries should be kept in mind. Following journal entries should be kept in mind. Case 1. If preference shares are redeemable at par. If preference shares are redeemable at par. Assume करके चल रहा हूँ बच्चों की हर एक preference share की face value कितनी है? 100. Now when we buy the preference shares, can I say बच्चों, मतलब redeem the preference shares to be precise. Preference shares are coming in, and who's the giver? Preference shareholder. So can I say my entry will become percentage preference share capital account debit to preference shareholder. Say 100. भाई numbers अगर lakh होंगे तो into 1 lakh हो जाएगा. I'm just doing it for one preference share at the moment. Now on payment, ये हमारी entry number A थी. If they are redeemable at par, so this was for making the preference share due. Now on payment to preference shareholder. So when you make the payment to preference shareholder, can I say preference shareholder is the receiver and my dabba is the giver? डब्बा से मेरा मतलब हो गया कार्तिक बैंक. सोहर सो यही सेम एंट्रीज दोबारा काम आएंगी जब डिबेंचर्स करेंगे. आज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्ड लिख रहे हैं, तब डिबेंचर्स लिखेंगे. एग्जैक्टली से. ओके, केस 2. If preference shares are redeemable at premium. If preference shares are redeemable at premium, यानी अब मुझे 100 के बदले 110 रुपए देने हैं. तो पहली बात तो ये मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है? दोनों वर्ड में फर्क होता है. सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड आप कब यूज करते हो? व्हेन यू इशू. नाउ यू आर रिडीमिंग, सो इट इज कॉल्ड POR. सो दिस प्रीमियम इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. ये प्रीमियम लेने वाला या देने वाला? कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बन के आपने जब भी एंट्री लिखे हो आप आर्टिफिशियल एंटिटी हो, तो फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू लेने वाला या देने वाला? देने वाला. और ये प्रॉफिट या लॉस? एंड लॉसेज आर डेबिटेड. तो अब एंट्री अपन लिख दूंगा. कैन आई से प्रेफरेंस शेयर्स आर कमिंग इन called preference share capital, say 100. They are redeemable at premium called premium on redemption, which is loss for the business, and losses are debited.
to whom we have to give the money? Preference shareholder. 100 या 110? 110. By 110 I meant including the value of premium. Including the value of premium. Okay. This is again, this was the entry for making it due. Now on payment, preference shareholder is the receiver or giver? Receiver, and my dabba is the giver. But 100 या 110? बोलो भाई, 100 या 110? 110. By 110 I mean including the premium amount. By 110 here I mean including the premium amount. मेरे को आज मैसेज आया था रिदम सुयश का, कहते सर टेस्ट ले लो शेयर्स का एक आधा छोटा सा। आपने नहीं बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैक लूंगा, पहले बता रहा हूँ, जब 2-3 चैप्टर्स हो जाएंगे तो छोटा सा टेस्ट लूंगा। भाई मेरे लिए आप बड़े हो गए तो क्या हुआ, छोटे ही रहोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैक, सो फार सो गुड। अब हम बात करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में एक टर्म सीखते थे, फिक्टिशियस एसेट, लाइक अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट शेयर्स पे तो बात आई, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एक्सेट्रा, दे आर फिक्टिशियस एसेट्स। एंड बचपन से हम बोलते आए हैं फिक्टिशियस एसेट्स आर इन द नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मुझे उन्हें राइट ऑफ करना है। तो हाउ टू राइट देम ऑफ, आज वो एंट्री भी साथ के साथ सीख लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में तो चाहिए ही चाहिए। लिखते हैं बच्चों, ये तो थे 2 केसेस, अब इसके अलावा हम अलग से बात कर रहे हैं, मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया, जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ premium on redemption within bracket any fictitious asset. Premium on redemption within bracket any fictitious asset. प्रीमियम को डेबिट कर रखा तो राइट ऑफ करते हो क्रेडिट। अब सबसे पहले किसको मैं यूज करूंगा गाइस, ये हमारा रूल होता है एसपीआर। अगर एसपीआर नहीं है तो कैपिटल रिजर्व। वो भी नहीं है तो जनरल रिजर्व, और वो भी नहीं है तो डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब मैं आप बड़े बच्चे बनाना है मुझे आपको। सो व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट्स, अभी बताऊंगा। टू POR शॉर्ट में लिख दिया, बाय POR आई मीन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और मे बी एनी अदर फिक्टिशियस एसेट लाइक अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एक्सेट्रा। सो दिस इज द एंट्री व्हिच वी हैव टू फॉलो। और उसमें देखो मैं बड़ा सिंपल सा बात बोलूंगा, वो भाग मिल्खा भाग की पिक्चर थी, उसमें एक गाना था, नाता धोता सुखाता सारे ऑर्डर बजाता। मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है आपको अपने प्रॉफिट्स को इसी ऑर्डर में यूटिलाइज करना है, कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू यूज इज एसपीआर। एसपीआर इज नॉट देयर और इट इज इनसफिशिएंट, यूज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के लिए हमें जो सिखाया जाता था, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक ये क्यों गलतियां कर रही है, आप याद से अपने कॉलेज में एक बार कंफर्म करना, जो मैं आज एक छोटी सी बात पूछने को बोलूंगा। हमें ये सिखाया जाता था बच्चों, ब्रैकेट में लिख दो, कैपिटल रिजर्व इफ रियलाइज्ड इन कैश। मैं इसका रेलेवेंस डिटेल में बता दूंगा वंस द कॉलेज कंफर्म्स। अगर वो कहेगा नहीं नहीं हमें तो करना ही करना है, फिर हमें उसका वो डिटेल जानने का जरूरत नहीं, टू बी वेरी प्रिसाइज। अभी लेकिन लिख के छोड़ दो आप, कैपिटल रिजर्व विद इन ब्रैकेट में इफ रियलाइज्ड इन कैश। सो व्हाट डज दैट मीन, आज के लिए छोड़ दो बच्चों। मेरे कहने पे एक छोटी सी चीज कॉलेज से पूछा ना, वो फिर भी बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे ही करना है, तो फिर हम वैसे ही कर लेंगे, नहीं चेंज करेंगे। वो कहेंगे नहीं यार ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इफ रियलाइज्ड इन कैश। 12th में भी बोलता था और 12th से ही बोलता हूँ मैं तक, क्योंकि मेरे को पता है जिन बच्चों को मैंने आगे भी पढ़ाना है उनको पता है कोरिलेट कर सकते।
एनीवेज, मोटी मोटी एंट्रीज, बाकी एंट्रीज तो और बड़ी सारी करनी है, बट यस रिडेम्पशन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक एंट्रीज थी जो मुझे बात करनी थी मैंने कर ली। अब इस चैप्टर का हमें थीम जानना है। जैसे अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज की 12th स्टैंडर्ड की, वहां पे हम एक चैप्टर पढ़ते थे कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉमर्स में भी पढ़ा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, नथिंग बट टॉकिंग अबाउट डेट इक्विटी मिक्स। कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट टॉकिंग अबाउट डेट इक्विटी मिक्स। नाउ डेट इक्विटी मिक्स से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट। बट सेक्शन 55 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, या सेक्शन 55 भी होगा, बुक में देख लेंगे। कहते हैं व्हेन यू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर सर्टेन पॉइंट्स नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। ये नहीं कि मुंह उठाया और प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, आपको देखना पड़ेगा एम आई एलिजिबल टू रिडीम दोस प्रेफरेंस शेयर, सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस। लिखते हैं बच्चों, पॉइंट टू रिमेंबर, नंबर 1, पॉइंट टू रिमेंबर नंबर 1, ये सब सेक्शन 55 के हिसाब से बात कर रहा हूं। कैपिटल स्ट्रक्चर टू बी केप्ट इंटैक्ट। सर समझ नहीं आया, अभी बताता हूं। कैपिटल स्ट्रक्चर टू बी केप्ट इंटैक्ट, जैसे मैं आपके साथ बात करता हूँ, जब हम वर्ड इक्विटी बोलते हैं, मतलब इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाता है। सिंस दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूँ। ₹5 लाख के 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है विच आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। जल्दी मत करना, मैं बहुत आराम आराम से बात करूंगा। ₹5 लाख की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है विच नीड्स टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ, आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, उसके बाद तो बस एंट्रीज 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 थोड़ा सा इधर उधर होता रहेगा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। ₹5 लाख के 6 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है विच आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 5 लाख का 10% 50,000, तो हमें टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा? 550। एक बच्चा कहता है क्यों? मैंने कहा ये ले एंट्री में अमाउंट डाल ले। मतलब अगर आप एंट्री में अमाउंट डालने की बात करोगे, ये मेरी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 5 लाख, यहाँ 50,000, तो यहाँ आ गया 5 लाख, तो मुझे पे कितना करना पड़ा? 5 लाख। दिस इज व्हाट इट मेंट। बट बच्ची जो 550 है वो है फाइनेंस एंगल, कि मुझे 5,50,000 रुपए देना है, इसके लिए जुगाड़ कहाँ से करूं पैसे का? दैट इज फाइनेंस पर्सपेक्टिव, रिसोर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है फेस वैल्यू। आज आपने अपनी शेयर कैपिटल का कितने का रिडक्शन किया? 550 का नहीं, शेयर कैपिटल का रिडक्शन तो विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू है विच इज 5 लाख। कहते हैं जो 5 लाख से आपने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रिड्यूस कर दिया, डेट इक्विटी, इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आप इसको रीस्टोर करो बाय हाउ मच? 5 लाख। दिस इज व्हाट इट मेंट, capital structure to be kept intact. Before I go further, what do they mean by the term capital structure to be kept intact is कि जितना भी आपने शेयर कैपिटल में रिडक्शन किया है विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू, उसको रीस्टोर करो। तब आप कहोगे रिडीम किया ही क्यों? माइट बी एक्सपायर्ड रीजन, टर्म ऑफ रिडेम्पशन था, 10 साल के प्रेफरेंस शेयर थे, तो करना ही पड़ेगा। अब उसको रीस्टोर कैसे करें इंटैक्ट? मतलब अगर शेयर कैपिटल में रिडक्शन 5 लाख का किया है तो मुझे रीस्टोर भी वो कैसे करें? उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस मिलती है, फ्रेश इश्यू और क्रिएट CRR which is called, or create CRR which is called capital redemption reserve, and it can be a combination of both, कार्तिक, कि 2 लाख का फ्रेश इश्यू कर दिया और 3 लाख का CRR बना दिया। CRR कैसे बनाते हैं वो भी एंट्रीज हम करेंगे, बट दिस इज व्हाट दे मेंट।
अब आप कहोगे सर सीआरआर कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट कैसे, अभी थोड़ी देर बाद डेफिनेशन लिखवाऊंगा। 12th में भी बोला करता था, आप थियरी में पढ़ते थे बट जनरली छोड़ देते थे। द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। Capital redemption reserve can only be utilized for issue of fully paid bonus shares. Oh, that means CRR जब भी यूज होगा उससे बोनस इश्यू आएगा, बोनस इश्यू शेयर कैपिटल, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर में ही ऐड होगा। चाहे मैं आज फ्रेश इश्यू की फॉर्म में कर दूं या आज सीआरआर करके फ्यूचर में बोनस इश्यू कर दूं, रहेगा तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर का ही पार्ट, एंड हेंस मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर इंटैक्ट मेंटेन हो गया। बट माइंड माय वर्ड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या देखनी है, उसकी फेस वैल्यू, टोटल वैल्यू नहीं। फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर पर्पस वी आर ओनली कंसर्न सुयश विद फेस वैल्यू, ना कि टोटल वैल्यू। डन? ये बात समझ आती है तो ये ड्राइंग बना दो बच्चों ऐसे ही। जस्ट मेक दिस ड्राइंग। नंबर 2, journal entry for transferring the divisible profits to CRR account. प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं तो ट्रांसफर करते वक्त डेबिट। divisible profit account debit to CRR. Now what are divisible profits? Divisible profits are those profits which are freely available for distribution as dividend. Divisible profits are those profits which are freely available for distribution as dividend. Example, general reserve, statement of P&L, workman compensation reserve। WCR वर्ड तो याद ही होगा, बट इसकी ब्रैकेट में लिख देना, to the extent there is no liability against it। तभी तो बोलूंगा they are free reserve, free bird। Dividend equalization reserve, as the name says, this is for equalizing the dividend। और divisible profit की हमने definition भी क्या लिखी, profits which are freely available for distribution as dividend। So dividend equalization reserve। जैसे आपने WCR लिखा वैसे आप ये वर्ड भी लिख सकते हो, याद करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। टू द एक्सटेंट, अगेन टू द एक्सटेंट देयर इज नो लायबिलिटी है। ऐसे बहुत सारे होंगे, मैंने वो नाम यूज किए जो ज्यादातर यूज होते हैं बच्चों। IFF is investment fluctuation fund to the extent no liability against it। Exactly। Any profit or any fund against which there is no liability against it will be considered as divisible profit, will be considered as divisible profit।
CRR, इसको कैपिटल लेटर में लिखना, can only be used for issue of fully paid bonus shares. Point number 5. There is a difference between capital structure and financing. I think you guys can correlate. When I say capital structure, I meant 5 lakh. When I say finance angle, I meant 5 lakh 50,000. Point number 6. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये कई बार तंग करता है. For the purpose of capital structure, आज मैं लैंग्वेज चेंज करके लिखवा रहा हूं. In case of issue of shares, either the face value, ये मैं लिख तो रहा हूं बट टेक्निकली एप्लीकेबल नहीं होगा, फेस वैल्यू तक ही एप्लीकेबल होगा, और द डिस्काउंटेड वैल्यू, ये क्रक्स बता रहा हूं मुझे, is considered I repeat for the purpose of capital structure. बताऊंगा बच्चों, बहुत चीज कम करेगी आने वाले टाइम में. Either the face value or the discounted value is considered for computing the number of equity shares from capital structure angle. बार बार ये वर्ड लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो. सर क्या है ये, अभी समझाऊंगा. Done? Again, this point अब इससे रिलेटेड मैं बहुत कुछ लिखूंगा. A company cannot redeem preference shares unless and until they are fully paid up.
company cannot redeem preference shares unless and until they are fully paid up. Thank you. अब प्रॉब्लम ये आती है, कंपनी जिसके हम शेयर्स रिडीम करना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, उसके पास दो कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। मैं लिखवा दूंगा ये सब भी, बट पहले हम बात करें दो कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर, एक 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक 7%, कोई भी दो नाम, एक फुली पेड अप है और एक पार्टली पेड अप है, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो फुली पेड अप होंगे वही रिडीम होंगे, जो पार्टली पेड अप है वो रिडीम, उनको हमने रिडीम करने के बारे में सोचना भी नहीं है। प्रॉब्लम इज व्हेन यू हैव ओनली one class of preference shares and they are not fully paid up and question says redeem preference shares, what to do, what are the assumptions to take, वो लिखेंगे बच्चों। I repeat, जब दो कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक पार्टली पेड अप और एक फुली पेड अप, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जो फुली पेड अप है उसको रिडीम करो, क्योंकि लॉ क्या कहता है सेक्शन 55, वी कैन ओनली रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर फुली पेड अप। But what if we have only one class of preference shares and question says redeem preference shares and they are not fully paid up? So what are the assumptions to be followed? वो हम मिलके देखते हैं, लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं इसी के अंदर, इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसको अलग से पॉइंट नहीं बनाएंगे, इसके सब पार्ट्स बनाएंगे। A, in case company has two classes of shares one is fully paid up and another is partly paid up. One is fully paid up and another is fully paid up. Can we say we will redeem fully paid up, यानी partly paid up के बारे में कुछ सोचना ही नहीं, तो लिख देते हैं। B, in case company has only one type of preference shares and that too partly paid up. ब्रैकेट में ऑल, अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू कर रखे थे कार्तिक, 1 लाख के 1 लाख ही पार्टली पेड अप है, क्यों? क्योंकि 10 रुपए का शेयर प्रेफरेंस शेयर ऑफ आउट है, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर, कंपनी ने मांगे 80 रुपए, 20 मांगे, बट अब क्वेश्चन क्या आता है, उन्हें क्या करो, रिडीम। तो पहले आप एज्यूम करोगे, आप उस पर फाइनल कॉल मांगोगे, उसने आपको फाइनल कॉल दे दी, यानी आपने उस पार्टली पेड अप को किस में कन्वर्ट किया, by making a final call due as well as receive, and then we proceed to redeem the preference shares. So this is the assumption we take when we have only one type of preference shares and all of them are partly paid up. लिख देते हैं बच्चों। Then in order to redeem them, we will make the final call due and receive. This is when
rhythm when question is silent, but otherwise वो जो बोल रहा है हम करते रहेंगे. This is, and we will make final call due and receive, and thereafter apply the concept of reduction. And thereafter apply the concept of reduction. Simple. कोई दिक्कत? लॉक कर दो. ओके. अच्छा, उसके बाद ना 1.5 पेज हमेशा छोड़ दिया करो, क्योंकि मेरे कुछ चीजें बाद में याद आती हैं लिखवाना, तो मैं भूल जाता हूँ, तो स्पेस एक ही जगह होगा, तुम्हारा एक साथ हो जाएगा. नाउ ये एंट्री हमने वैसे तो 12th में भी सीखी होगी, बट कोई बात नहीं, दोबारा हमें इस चैप्टर में भी काम आएगी और बहुत सारे चैप्टर में काम आएगी. Following journal entry should be kept in mind for bonus issue. Following journal entry must be kept in mind for bonus issue. Number 1, on bonus issue becoming due. नंबर 1, CRR, मतलब जिस ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे फिक्टिशियस एसेट के लिए था, उसी ऑर्डर में हमें यूज करना है, और सबसे पहले हमें किसे यूज करना है? CRR. उसका रीजन है, आज ही अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सीखा मेरे साथ, CRR कैन ओनली बी यूज फॉर इश्यू ऑफ fully paid bonus shares. Fully paid bonus shares. Mind my words, fully paid bonus shares. इसका क्या मतलब है देखेंगे. CRR डेबिट, SPR डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, वही आयरिक. समझ गया ना इससे मेरा क्या मतलब है? इफ रियलाइज्ड इन, अभी लिख के छोड़ देते हैं, वो आपके लेवल पे नहीं यूज होगा तो नहीं करेंगे, बट टेक्निकली होता है बच्चों रियल लाइफ में. कैपिटल रिजर्व डेबिट विद इन ब्रैकेट आयरिक मींस इफ रियलाइज्ड इन कैश. देन डिविजिबल प्रॉफिट्स. अगर आप ध्यान से देखो, बोनस इश्यू और फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ की एंट्री में सिर्फ पहले नाम का ही तो फर्क है, बाकी तो ऑर्डर बिल्कुल सेम है. टू बोनस इश्यू. नाउ ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, बोनस इश्यू के अगेंस्ट आपने क्या दिया शेयर होल्डर्स को? शेयर कैपिटल. मैंने भी लिख दिया. बोनस इश्यू क्रेडिट था, मतलब बोनस इश्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स को. तो दे आर द रिसीवर एंड शेयर्स आर गोइंग आउट. तो माय एंट्री बिकम्स बोनस इश्यू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो फार सो गुड. लॉक कर दूं? कर दिया. अब बिफोर आई स्टार्ट टुडेस क्वेश्चंस, हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है बच्चों कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों केसेस में टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का सोचने का नजरिया अलग होगा, इसीलिए अमाउंट भी अलग होगा. So we have to see whether the question is from capital structure point of view or finance point of view. Like I take the same example again. 5 lakh rupees share capital redeemed at 10% premium. So finance is 550, but capital structure is 5 lakh, called with respect to face value. With respect to face value. All right. अब तेरी
ओके, कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल, प्रोसीड्स निकालनी है फ्रॉम फ्रेश इश्यू, और सीआरआर और फ्रेश इश्यू का सम टोटल इज टू कीप द कैपिटल स्ट्रक्चर इंटैक्ट। ये मैं ड्राइंग के फॉर्म में हमेशा किया करता था, मैं आज भी वैसे ही कर रहा हूँ। कहता है कैलकुलेट द प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन द फॉलोइंग, issued 1,50,000 shares of ₹10 each at par. Issued shares at a premium of 15, मतलब 5 यानी total, I'm so sorry, total 50. Proceeds of fresh issue of shares. So they are issued at a premium. मैंने कहा, मैंने आपको नोट लिखवाया, either the face value or the discounted value is considered for the purpose of capital structure. ये रूल है सेक्शन 55 का। तो इवन इफ दे आर इश्यूड एट प्रीमियम, पैसे 15 रुपए ही मिले हैं, बट कैपिटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कैपिटल का पार्ट तो 10 रुपए ही बनेगा, शेयर कैपिटल का पार्ट तो 10 रुपए ही बनेगा। तो माय आंसर स्टिल रिमेन्स नंबर 3, शेयर्स इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% नॉट एप्लीकेबल। मैंने हालांकि लिखवाया आपको वर्ड डिस्काउंटेड वैल्यू, बट वो कब, जब वो वर्ड स्वेट इक्विटी यूज करेगा, अदरवाइज में, और वो आपके लेवल पे करता ही। इसीलिए नॉट एप्लीकेबल मींस द कंपनी नाउ कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। तो जब कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इश्यू ही नहीं कर सकती, तो वो फिर फ्रेश इश्यू का पार्ट हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये केस अब एग्जिस्ट नहीं करता, इसी जमाने में करता था, आज भी करेगा, प्रोवाइडेड, आई रिपीट, आज भी करेगा, प्रोवाइडेड स्वेट इक्विटी। Issued 1,50,000 shares of 10 each at par, but only, अभी तक तो लायबिलिटी फेस वैल्यू से बनती है, एग्रीड, बट अभी तक तो हमने मांगी 8 है, तो लायबिलिटी कितने से बनी, तो फ्रेश इश्यू के लिए कितना कंसिडर करूं? ये मेरा फालतू का क्वेश्चन खत्म। जो मैं सिखाना चाह रहा था, इधर द फेस वैल्यू और द डिस्काउंटेड वैल्यू, और फेस वैल्यू भी टू द एक्सटेंट पेड अप, जितना पेड अप होगा लायबिलिटी तो उसी से बनेगी ना। आंसर है आपके पास, देखो उन्होंने दे रखा है, मुझे बताना ही नहीं। अभी सीआरआर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने रिडीम करने हैं। मैं तो बस ड्राइंग बता रहा हूँ कि मैं ऐसे चलता हूँ जनरली करते वक्त, और ये आगे वाला पोर्शन सीआरआर तभी यूज कर पाता है जब मेरे पास दिया होगा कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड, राइट सुयश, कार्तिक, ओके। कौन लड़के बहुत पढ़ती है यार ये। ओके, illustration 2, now from the following calculate the amount that should be transferred to CRR in each of the following cases। तो कहने को ये 5 केसेस हैं, 5 डिफरेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड एट par, FICR, this is what I was saying। okay, 10 lakh
इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड एट पार फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। तो फ्रेश इश्यू कितना? 10 लाख। तो बताओ सीआरआर कितने का बनाओगे? बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। फिनिश। है ही नहीं कुछ, सिंपल सिंपल आराम आराम से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कोई दिक्कत? सेकंड केस पे आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। मैंने उस 5% पे, अब जैसे 14 फेब को फालतू फालतू प्रपोजल आ जाते हैं तो इग्नोर ही करने पड़ते हैं, तो हम भी यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। हमें सिर्फ किससे मतलब है? फेस वैल्यू से। वेदर दे आर रिडीमेबल एट पार और एट प्रीमियम, साइड पे रखो। हमारे को तो अभी किससे मतलब है? फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फेस वैल्यू से। मतलब क्वेश्चन में वर्ड प्रीमियम लिखा है, आप कहते हो तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये देखो। और काट भी देता हूँ कि मुझे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल फाइनेंस के लिए जरूरत है कि अगर मुझसे कोई पूछे पैसे कितने देने, 12,60,000, बट कैपिटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना? ओनली। कैपिटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सुयश अंकल? ओनली 12 लाख। ओके, अगेन वी इशूड 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट पार, तो सीआरआर कितना? थर्ड केस। फ्रेश इश्यू कितना? 10 लाख। सर दे आर इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए उसकी जरूरत नहीं है, बट मुझे वैसे कोई पूछे कितने पैसे मिले, 11 लाख, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी घूम फिर के बाद क्या है? इट इज द ओनली फेस वैल्यू विच इज कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फिर से आपका सीआरआर कितना? नंबर 4, 12 lakh at a premium of 10%. Fresh issue at a discount of, because we cannot issue shares at discount. बट यहाँ पे ना प्लीज अपने अपने कॉलेज में याद से पूछना, सर हाउ अबाउट स्वेट इक्विटी, देन सी व्हाट ही हैज टू से। या तो बोलेगा क्वेश्चन डेफिनेट, या बोलेगा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करते तो हम वही फॉलो करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मेजोरिटी कॉलेजेस में यही बोला था। ओके, फिफ्थ केस, 12 lakh, again rupees 10 lakh at a discount of, तो क्या है ऐसे? अगेन नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। दो दो दो, हमने लिखा है दो दो। हाँ, उन्होंने उन्होंने आंसर क्यों डिफरेंट दिया, मैं वही देख रहा हूँ। नहीं देखो, उन्होंने लास्ट में लिख दिया, इट इज इनवैलिड बिकॉज सेक्शन 53 प्रोहिबिट्स इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। द रीजनिंग सेम रीजनिंग एज इन 4, उन्होंने लिख दिया यहाँ पर बट वो गलत, तो हम सीआरआर बना ही सकते हैं। हाँ, मैं जो कह रहा था वो आंसर उनका सही कब मानूंगा? व्हेन द शेयर्स हैव बीन इशूड एट ए डिस्काउंट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी, इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी, वो हम देखेंगे क्या अलग से। चलो मैं बता ही देता हूँ। फोर्थ केस पे आते हैं। इफ discount
is on sweating. ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, अगर कॉलेज मना करे तो प्लीज हमें वो फॉलो ही नहीं करना, हमारी लाइफ इजी होती है यार। इफ डिस्काउंट इज ऑन स्वेट इक्विटी, अब जरा ध्यान से देखते हैं, फोर्थ केस पे वापस आते हैं। फोर्थ केस कहता है डिबेंचर्स आर इशूड सॉरी रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, बट हमें तो हमेशा किससे मतलब है। और फिर मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया था, इफ यू कैन रिकॉल, ईदर द फेस वैल्यू और द ऑलराइट। Now 10 lakh debentures, sorry, shares are issued at a discount of 10%. I am assuming them to be face value कितना, डिस्काउंट कितना, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितना, अब बताओ CRR कितना। This is what they were showing as an answer, but इन्होंने at the same time reasoning दे दिया है that we cannot proceed to issue shares at discount as section 53 prohibits the same. So far so good, लॉक कर दो, कर दिया। इलस्ट्रेशन 3, इससे रिलेटेड भी एक छोटी सी बात पूछने को कहूंगा जो मैंने आपको बताई थी, दोबारा बोलूंगा। From the following information, find out the amount of fresh issue of shares for the purpose of redemption of preference shares. When you say for the purpose of redemption of preference shares, your target is capital structure. Your target is capital structure. So far so good. All right. Case 1. अब जरा गड़बड़ ना हो जाए, ओके। जल्दी मत करना बच्चों, मेरी बात पे ध्यान देना। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 12 लाख टू बी रिडीम्ड एट पार फेस वैल्यू, इधर देखो बेटा, POR nil बिकॉज दे आर रिडीमेबल एट, ये बात मैं अभी से क्यों बोल रहा हूं बताऊंगा। एंड नाउ क्वेश्चन की प्लीज सुनना बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या, फाइंड आउट द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, फाइंड आउट द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। दैट मींस पहले ये सोचो CRR कितना बना सकते हैं, उसके बाद सोचेंगे फ्रेश इश्यू की जरूरत कितनी। सर आपको कैसे पता, उनका प्रॉफिट दिए इसलिए, क्योंकि CRR बनता किससे, प्रॉफिट। CRR बनता किससे, प्रॉफिट। सो फार सो ओके। और CRR बनाने की हमने एंट्री क्या लिखी थी बच्चों आज, डिविजिबल प्रॉफिट टू CRR। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत जरूरी है मेरे लिए, वर्ड डिविजिबल प्रॉफिट लिखना। वो जो CRR, SPR, कैपिटल रिजर्व, वो सिर्फ दो केसेस में यूज कर रहे हैं। कौन से दो केसेस, एक when you make bonus issue and दूसरा when you write off fictitious assets. So far so good, लॉक कर दो। Now we have SPR 4 लाख। आज घर जाके वापस, जैसे 12th में टीचर्स बोलते होते थे, मैं भी बोल रहा हूँ वापस, 12th भी पढ़ाई देता हूँ कि SPR किस किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है, घर जाके दोबारा पढ़ो। वैसे मैं बोल भी दूंगा अभी, बट पढ़ना क्योंकि मेरे लिए हमेशा जरूरी था, जरूरी है, जरूरी रहेगा। SPR कैन बी यूज्ड, मोटा मोटा बताऊं, नंबर 1 for writing off all the fictitious assets like underwriting commission, share issue expense, premium on redemption of preference shares, discount on issue of debentures, etc. And second, for issuing fully paid bonus shares. So when I say this, I have said indirectly that I cannot use SPR to create CRR, because SPR is not a divisible profit.
SPR has its specific purpose as written under the law. When the shares are issued at premium, premium received on issue of shares will be used for the following purposes. And those purposes were bonus issue and in a layman sense fictitious asset, जिसको वो अलग-अलग 2-3 पॉइंट्स में काउंट करके बोल देते हैं. So we cannot use it for the purpose of creating CRR. चलो SPR को तो साइड कर दो, बचा क्या? जर्नल रिजर्व. इसका मतलब we will use journal reserve to the extent of 8 lakh because we have journal reserve of rupees 8 lakh. तो बताओ फ्रेश इश्यू कितने का? अब यहाँ पे ना एक नोट लिख रहा हूँ बच्चों, अपने बच्चों के लिए, ये बुक में नहीं दिया हुआ, पहले सुन लेना. यही गलतियां इस पूरे चैप्टर में बार बार होती है, इसलिए मेरे लिए पॉइंट शुरू से बताना जरूरी है. मैंने ये जो 4 लाख रुपीस निकाला है, ये निकाला है मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल से, फाइनेंस एंगल से नहीं. किस एंगल से? कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल से. कहने का मतलब अब अगर मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल से शेयर कैपिटल निकाला और मुझे कोई बोले बताओ नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कितने, तो इस 4 लाख को मैं फेस वैल्यू से डिवाइड करूंगा, प्रीमियम वैल्यू से डिवाइड, even if shares are actually getting issued at premium. Mind my words, मैं किस पर्पस से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहा हूं वो जरूरी है. Like over here I am calculating the shares for the purpose of capital structure, which is with respect to face value. So while calculating the number of shares, I will divide this amount by face value of one share, irrespective of the fact or even if they are actually getting issued at premium. ये सेक्शन 55 की इम्प्लीकेशन कि यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर फेस वैल्यू के एंगल से देखना, फाइनेंस एंगल से देखना. हाँ, वहीं अगर फाइनेंस एंगल से देखना होगा तो पार है तो पार, प्रीमियम है तो बस, ये बात बोलनी थी. तो मैं यहाँ एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं. For this purpose, only face value is considered to compute the number of equity shares. Only face value is considered to compute the number of equity shares. Case 2. 12 lakh preference shares redeemable at a premium of 10%. इस बार लिख के काट नहीं रहा, उसका रेलेवेंस है, क्योंकि यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के बाद फ्रेश इश्यू कितना करूं वो डिपेंड करेगा CRR कितना होगा, इसलिए रुका हुआ. आप जरा ध्यान से देखो, मेरे पास इस क्वेश्चन में SPR भी है, डिविजिबल प्रॉफिट कॉल्ड सरप्लस भी है. So far so good. Now फ्रेश इश्यू कितना करूं गाइस, फ्रेश इश्यू कितना करूं दैट डिपेंड्स कि CRR कितना बनेगा. CRR कितना बनेगा दैट डिपेंड्स कि हमारे पास प्रॉफिट है कितना. हमारे पास प्रॉफिट है कितना डिपेंड करेगा कि भाई कोई राइट ऑफ लॉसेस वगैरह तो नहीं बचे हुए करने वाले. I repeat once again, to know my fresh issue, I first need to know
how much CRR I can create. For that purpose, I need to know how much profits are available for creating CRR. Like आज मेरा POR जो मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा वो कितना राइट ऑफ करना है 120. सबसे पहले किसके अगेंस्ट राइट ऑफ होता है? SPR. दूसरे नंबर पे किसके अगेंस्ट राइट ऑफ होता है? कैपिटल रिजर्व, जिस पे लिखवाया था इफ रियलाइज इन कैश. नहीं है इस क्वेश्चन. That's why we will jump on to divisible profit. Okay. Now balance 40,000. ये देखो इधर देखो बेटा, इसमें से 80 तो आपने कहां से राइट ऑफ कर दिया? SPR से. तो बाकी 40 कहां से राइट ऑफ करना पड़ेगा? बोलो. 2/3 और मैं प्लस. तो आपके पास सरप्लस कितना बचा? 960. इट मींस आज आप CRR कितने का बना सकते हो? 960. तो बताओ फ्रेश इश्यू कितने का? बैलेंसिंग फिगर 2,40,000. देखो आज मैं ना ड्राइंग फॉर्म में करा रहा हूँ, लिखना तो हमें भी बुक की तरह इंग्लिश में होगा, बट जब आप ऐसे चार्ट भी बना के दे देते हो टीचर को समझ आ जाता है आपने क्या किया. दे आर एक्सेप्टेबल. क्लियर सुयश? पक्की बात? लॉक कर दूं? Now let's come to the third part. Rupees 12 lakh again at a premium of 10%. इस बार हमारे पास SPR कितना है? 40,000. सरप्लस कितना है? 6 लाख. जनरल रिजर्व कितना है? 3 लाख. CR कितना है? 60,000. और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कितना है? 50,000. DER. मुझे POR को जो राइट ऑफ करना है सबसे पहले क्या यूज करूं? दूसरे नंबर पे क्या यूज करूं? कैपिटल रिजर्व. बट मेरे सर ने मुझे जो सिखाया था ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. CA में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, गलती से मैं CA भी पढ़ाता हूँ. तो हमें ये बोला जाता है कि कैपिटल रिजर्व इज टू बी यूटिलाइज्ड इफ रियलाइज्ड इन कैश, and if question is silent we assume capital reserve is not realized in cash. जो हमें सिखाया गया है, मैं I'm just sharing that. तो यहाँ पे तो उसने कुछ बोला नहीं. तो अब आज की डेट में बीकॉम क्या assumption लेने लग गया? बीकॉम तो क्या शुरू से ही assumption लेता है कि नंबर 1 SPR, नंबर 2 कर दो यूज, सोचो ही मत whether realized in cash और. बट ये ना बड़े बदतमीज है, आज ये करेंगे थोड़ी देर बाद वही करेंगे जो मैं कह रहा हूँ. तो इसीलिए कॉलेज में कंफर्म कर देना व्हाट शुड वी फॉलो. इफ दे से यू कैन फॉलो ईदर ऑफ द assumption, इट मींस द बोर्ड एग्जामिनर और द यूनिवर्सिटी एग्जामिनर विल हैव टू आंसर्स नेचुरली डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या assumption है. बट टेक्निकली assumption क्या होनी चाहिए? इट इज नॉट रियलाइज्ड इन. बट अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ जो बुक से टैली करते हैं. अदरवाइज मेरा एक्चुअल आंसर विल डिफर बाय 60,000 रुपीज. Because I always assume that capital reserve is not realized in cash if question is silent. But अभी यूज कर लेते हैं. कितना?
अब थर्ड नंबर पे सच्ची बात बताऊं, सुयश, रिदम, कार्तिक, whether you use surplus or you use general reserve or you use dividend equalization reserve, they all are divisible profits. They all are, because they all can be used for distribution of dividend. So that is the reason मैंने अभी जनरल रिजर्व लिख दिया. अगर आप पेपर में सरप्लस या डी आर कुछ भी लिख दो, मुझे फर्क नहीं. इसका मतलब कैन आई से अब रिदम, कार्तिक, मैं सरप्लस कितना यूज कर सकता हूँ बच्चों सीआरआर के लिए? 6 लाख. जनरल रिजर्व 280. डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व तो मुझे अब फ्रेश इश्यू कितने का करना पड़ेगा? 2 लाख, विच कम्स एज बैलेंस. बट मेरा एक्चुअल रियल आंसर पता है क्या है? 3,30,000. समझ गया ना क्यों? क्योंकि मैं अगर रियल लाइफ में यूज करूं तो मैं कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज नहीं करूंगा, तो मेरा सीआरआर 60 से कम हो जाएगा, तो मेरा फ्रेश इश्यू 60 से बढ़ जाएगा. यानी जो आंसर अभी 270 आ रहा है, दैट विल कम एज 3,30,000. दैट विल कम एज कैपिटल रिजर्व रिलाइज इन कैश माना ही नहीं जाता, इसलिए आप उसको यूज सॉरी कम सरप्लस मैंने यूज कर लिया ना. नहीं सर, अगर हम कैपिटल रिजर्व से नहीं करेंगे तो माइनस जो 60 वो जनरल रिजर्व से करेंगे. लेट से मेरा जनरल रिजर्व यहाँ उतने से कम हो जाएगा, मेरा सीआरआर उतने से कम हो जाएगा, तो मेरा ये ऑटोमेटिकली 60 से ही तो बढ़ जाएगा. मैं सीआरआर को अगर यूज नहीं करूंगा तो वो तो एज इट इज पड़ा रहेगा पुत्र. तो मेरा ये जो भी 930 का सीआरआर आ रहा है, तब वो 870 का आएगा पुत्र. क्लियर है सुयश? पक्की बात? लॉक कर दो. क्लियर है रिदिप? कपिल कह रहा हूँ, कार्तिक. ये तो खुद दे रखे उन्होंने आंसर. 240 फर्स्ट पार्ट का, नहीं फर्स्ट पार्ट का 4, सेकंड पार्ट का 240 और थर्ड पार्ट का 270 है आपके पास. ठीक है, फोर होमवर्क में कर लेना, 6 पे आ जाओ. दे रखी है इंफॉर्मेशन, दे रखी है, बट जरा ध्यान से देखें. ओ थैंक यू. शेयर्स आर fully paid up and we cannot proceed to redeem preference shares unless and until they are fully paid up. और ये है भी fully paid up. Cool. SPR जनरल रिजर्व सरप्लस. मैं क्वेश्चन की कभी एंट्रीज पहले नहीं लिखता, मैं हमेशा वर्किंग नोट, जैसे शेयर्स में प्रो रेटा का टेबल पहले बनाता हूँ, इसमें पहले वर्किंग नोट बनाऊंगा. लाइक मुझे पता है मेरे प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 लाख. Now whether they are redeemable at par or they are redeemable at premium, for capital structure purpose I need which is 10 lakh. Okay, then I have SPR 2 lakh, general reserve 4 lakh and surplus 5 lakh. Okay, the company exercises option to redeem all the preference shares at a premium of 5 April for 5% on 1st April. Premium on redemption 5% of 10 lakh, which is 50,000. जल्दी मत करना बच्चों. Can I write? I will write it off against SPR क्योंकि पैसे की कमी नहीं है. अब
जब मैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के बारे में सोचता हूँ मेरे दिमाग में दो बातें चलती है। एक तो हिंदी पिक्चर का गाना चलता है, वो कौन सा था मैं भूल गया, कर ले कोई जुगाड़, है ना किसी पिक्चर में गाना। हाँ, फुकरे, सही बोला आपने। तो कर ले कोई जुगाड़, कि भाई 10,50,000 रुपए चाहिए तेरे को पे करने के लिए, औकात है तेरी, नहीं है तो कहां से लाएगा पैसे। कॉल्ड फाइनेंस। ऐसे मत बोलो, राम राम से, फाइनेंस है। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए रिडक्शन कितने की हो रही है, 10 लाख की। तो तेरे को रीस्ट्रक्चर करते वक्त कैपिटल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रख के चलना है, 10 लाख, इधर बाय सीआरआर और बाय फ्रेश इश्यू। और दोनों में शेयर्स की बातें होंगी, बट एक फाइनेंस एंगल है और एक कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल है। एक ही चीज दोबारा बोल रहा हूं, कौन सी, कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल से मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ओनली। इज दैट क्लियर? बिकॉज ऑफ प्रीरेक्विजिट ऑफ सेक्शन 555555 बोले तो 55। ओके, टू फाइनेंस द रिडेम्पशन, वर्ड देख रहे हो क्या, टू फाइनेंस द रिडेम्पशन मतलब 10.5 लाख रुपए के बात को ध्यान में रखते हुए, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड रियलाइजिंग, तुझे आइला 6 लाख की इन्वेस्टमेंट 560 में बेच दे, 40,000 का so far so good. A fresh issue, प्लीज, ये जो मैं सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूँ ये मैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल से पढ़ रहा हूँ या फाइनेंस एंगल से? थैंक यू, क्योंकि स्टार्टिंग क्या आई थी उसी के कंटिन्यूएशन में है मेरे दोस्त, it's going in the flow. A fresh issue of 10,000 shares of rupees 20 was made at rupees 25 per share, payable in full on 1st April, and the amount was fully subscribed and received on that date. ठीक है, $10,000 शेयर्स पे पैसे कितने मिले, 24 24 24, बट आई राइट, क्योंकि मैं यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल से कर रहा हूँ, पैसे 24 रुपए के हिसाब से मैंने, आई डोंट माइंड, बट यहाँ मैं कितना लिखूँ, the company wished that only minimum reduction should be made in, सुनो ये सेंटेंस का इस क्वेश्चन में रेलेवेंसी नहीं, बट अदरवाइज इसका मतलब क्या है वो सिखा दो। Minimum reduction in revenue reserve means CRR should be created as less as possible. It means सबसे पहले मुझे फ्रेश इश्यू के बारे में सोचना है और वो तो मैं गलती से सोच ही चुका हूँ, इसीलिए इस सेंटेंस का कोई रेलेवेंस नहीं है। बट अदरवाइज मान लो हम क्वेश्चन कर रहे हैं और फ्रेश इश्यू भी तक नहीं पता चला और ये लाइन लिखा हुआ है, दैट मीन्स मुझे पहले फ्रेश इश्यू के बारे में सोचना है, बिकॉज आई हैव टू कीप द सीआरआर as less or as minimum as possible. So minimum reduction in revenue reserve means create CRR to the minimum extent possible. So far so good. लॉक कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब एंट्रीज लिखवानी है, बुक में दिखा दूंगा कैसे कैसे चलती है। ओके, अब यहाँ पे सीआरआर आप खुद ही बता दो बेटा कितना आएगा सर, 8 लाख। अब ये 8 लाख का सीआरआर कैसे बनाओगे, 4 लाख 4 लाख, देखते जाओ बच्चों, 4 लाख, यानी आपके पास 60,000 सरप्लस अकाउंट में अभी भी बचा हुआ है। ये ड्राइंग आपको बाद में जब बैलेंस शीट बनाओगे, जो मैं आज करूंगा, आपके बड़ा काम आएगी, मेरी बड़ी सारी चीजें यहाँ से आ जाएंगी। मेरा जर्नल रिजर्व फिनिश 4 लाख था, 4 लाख का 4 लाख सीआरआर में यूज
मेरा सरप्लस 60,000 बचा हुआ है। टोटल जरूर मेरे पास 5 लाख था, बट 40 का लॉस भी तो राइट ऑफ करना। सो फार सो गुड, लॉक कर दो। दूसरी बात, जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे, वो कहते हैं ना पंजाबी में, जेब में नहीं दाने अम्मा चली बुझाने, बोले तो पैसे होंगे तो पेमेंट करूंगा ना। तो प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट की एंट्री आएगी बाद में, पहले पैसे का जुगाड़ दिखाना होगा कि हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं। वो एंट्रीज का ऑर्डर क्या है, बस वो समझाना है मुझे, और कुछ करना भी नहीं। यहां तक ड्राइंग समझ आ गई सबको? ओके। तो बस इनकी एक एंट्री का ऑर्डर वही मैं देख रहा था, शायद नई बुक में चेंज कर दिया। गधे के बच्चे। यस गाइस, हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ गए। अब हमारा एंट्रीज लिखने का टाइम आ गया। ये तो रफ वर्क था जो हमने किया। मैंने क्या कहा था, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना, और उसको रिडीम करने के लिए क्या करना है, पैसे का जुगाड़। और हमारी एंट्रीज में लिख रहा है, हमने पैसे के जुगाड़ के लिए दो चीजें की है, एक इन्वेस्टमेंट बेची है और एक फ्रेश इश्यू की है, और दोनों फाइनेंस एंगल से चल रहा है। नाउ जब मैंने इन्वेस्टमेंट बेची तो मनी इज कमिंग, इन्वेस्टमेंट इज गोइंग, बट बेचने पे मुझे तो 560 मिले, तो मुझे 40 का क्या हो गया, लॉस। एंड लॉसेज आर डेबिटेड, और हमने उस लॉस को किससे एडजस्ट किया, जो देखते रहो, सरप्लस अकाउंट। हमने उस लॉस को किससे एडजस्ट किया बच्चों, सरप्लस से। तो इंस्टेड ऑफ लॉस डेबिट की जगह डायरेक्टली क्या लिखते हैं, सरप्लस। पहला जुगाड़। दूसरा, वी आर इशूइंग द शेयर एट प्रीमियम। लिखा यहाँ 20 है, बट मुझे पता है these shares were issued at premium प्लस फ्रेश इश्यू। 4 रुपए प्रीमियम मिला 10,000 शेयर से, कोई दिक्कत? अब जब आप शेयर इश्यू करोगे, बचपन से एंट्री अब तो दोबारा भी कर ली अपने, फर्स्ट एंट्री लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड, बोलो, 2,40,000 सरवाइव, क्योंकि 10,000 शेयर्स को इश्यू करने पे पैसा कितना मिला, 44। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। एंट्री सारी लिखी भी हुई है, बस समझना है कि वो ऑर्डर वाइज हमें ऐसे चल रहा है। हाँ, एक ऑर्डर है मैं जो चेंज करूंगा, आप लोग देखेंगे कई बार आपकी बुक आप देखेंगे कुछ चैप्टर्स में गाइस, इन दोनों को क्लब कर देगी। क्या कर देगी रिदम, क्लब, और सीधा एक ही एंट्री दे देगी यार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। मेरा पैसे का जुगाड़ हो गया, मेरा पैसे का जुगाड़ हो गया। अब इसके बाद मुझे सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर इंटैक्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, जिसके लिए फ्रेश इश्यू तो मैं कोइंसिडेंटली कर ही चुका हूं। अब मुझे क्या बनाना है, सीआरआर। अब मुझे क्या बनाना है, सीआरआर। और सीआरआर बनाने के लिए 8 लाख का बनाना है, और मुझे पता है मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, एक जनरल रिजर्व और एक सरप्लस। प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं तो ट्रांसफर करते वक्त डेबिट। डन। नाउ पैसे का जुगाड़ भी हो, सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट हो गया। अब
आप जब कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी इंटैक्ट कर चुके हो तो जिस चक्कर में इंटैक्ट किया था वो काम भी करो, यानी वी हैव टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या था मतलब? 9%। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। Then preference shareholder is the receiver and my dabba is the giver. And last but not the least, guys, POR को हमने किसके अगेंस्ट राइट ऑफ किया है? SPR, जो हमने एंट्रीज में लिख के दिखाया हुआ है। सो POR क्रेडिट और SPR डेबिट। उन्होंने इस एंट्री को बहुत पहले लिख दिया है, जो मैं एग्री नहीं करता बच्चों। जब तक मैं ड्यू करके पे नहीं करूंगा मैं उससे पहले राइट ऑफ कर ही नहीं सकता, मेरा मेरा ये मानना है। तो ये एंट्री बस नंबर एक आगे पीछे हो सकता है, हालांकि सारी एंट्रीज देनी तो सेम डेट पे ही है, फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से तो यही 7 एंट्रीज बनती है, एक बार चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट वाली हमने कर दी, एप्लीकेशन वाली हमने कर दी, देखो ये उन्होंने बीच में डाल दिया। कैसे भाई? जब तक मैंने एक बात बताओ, मैंने डेबिट किया नहीं पहले राइट ऑफ कर दो, ऐसे कैसे? तो इस एंट्री का ये नंबर मुझे गलत लगता है, इट हैज टू बी एट द एंड। फिर हमने CRR बना दिया। हाँ प्लीज उनकी अमाउंट पे मत ध्यान देना, उन्होंने सरप्लस पूरा यूज कर लिया, जनरल रिजर्व कम किया, इट्स वाइस वर्सा। बोथ आर डिविजिबल प्रॉफिट, आप किसको पहले और किसको बाद में यूज कर रहे हो उससे फर्क, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके। ये हमने कर लिया, ये हमने, हमारी एंट्री सारी कंप्लीट। अब वो हमें और क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में? ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने की जब बारी आए, जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों। सबसे पहले लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, सॉरी, उसके बाद शेयर होल्डर फंड और नंबर 1 शेयर कैपिटल। जब आप वर्ड शेयर कैपिटल बोलते हो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है और प्रेफरेंस शेयर। मेरी बारी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 18 लाख। ये मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाने का विदाउट नोट्स टू अकाउंट, जैसे उस चैप्टर में भी सिखा रहा था। 18 लाख कार्तिक। उसके बाद फ्रेश इश्यू कितने का आया? 2 लाख। कितना हो गया? 20 लाख। प्रेफरेंस को तो भूल जाओ तोड़ के, इसके अलावा तो और कुछ? दिख रहा है नंबर 1 20 लाख। फिर आ गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस, दिमाग ही नहीं लगाना। CRR कितना? 8 लाख। उसके बाद भगवान आपका बना करे SPR कितना? 190, 9 लाख 90। और उसके बाद सरप्लस कितना बचा हुआ है? उन लोगों का जनरल रिजर्व बचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जनरल रिजर्व कम यूटिलाइज किया। कितना हो गया? 10 लाख। देन कम्स आपकी लायबिलिटी साइड का, और क्या क्या उन्होंने मुझे दिया। आई थिंक करंट लायबिलिटी है, लिख दो। देन कम्स एसेट साइड, एसेट में पहले टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के बाद टेंजिबल। टेंजिबल में क्या क्या आ गया? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर वैन्स। इन सबको ऐड कर दो। 20 25 26 26 लाख 40,000। ट्वेंटी सिक्स 40। इधर नोट्स टू अकाउंट में दिखा रहा है, बैलेंस शीट में टोटल फिगर आ जाएगी। देन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी सेल आउट कर चुके हो। फिर आपका क्या बचा? करंट एसेट्स। करंट एसेट में डेटर प्लस बीआर, डेटर प्लस बीआर इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल, डेटर प्लस बीआर इज कॉल्ड ट्रेड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग दिखाया जाता है, इफ यू गाइस कैन रिकॉल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस अलग दिखाया जाता है, अदर करंट एसेट्स अलग दिखाया जाता है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में बात करें, debtors will go under trade receivable, stock is a part of
इन्वेंट्री एंड बैंक इज ए पार्ट ऑफ कैश एंड कैश। वही दिखाया बच्चों। 660 आपका इन्वेंट्री था, ट्रेड रिसीवेबल 240, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 110, फिनिश। आज के लिए इतना काफी। बैलेंस शीट बच्चों मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब बच्चों से साथ साथ बनाते रहना, क्योंकि मैं सीधा इसलिए दिखा देता हूँ, अगर मैं बैलेंस शीट बनाने बैठूंगा ना तो एक क्लास में एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बिकॉज दैट्स जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज।